Welcome back, everyone. I hope you all really enjoyed networking and breakfast session. आज की जो talk है, the format is more of a fireside chat and it's more conversational because the speaker today has a lot of value to offer in terms of how you transition your journey, how you work towards your goals, and how you rise above the challenges. So I know a lot of you are here for Meena's talk, but just for the sake of formality, I'll introduce Meena. Meena is the co-founder of Metric app. Metric is basically an AI tool for small business, for business and startup founders to manage their finances. A lot of times, जो numbers or spreadsheets or cash वगैरह manage करना, it gets very overwhelming. Entrepreneurs and startup founders, and irrespective of कि आपका क्या business है, you're very creative, but there's no point of running a business when you can't manage your finances, and that's where the Metric app comes in. Talking about Meena's background, she is a Fulbright alumni, and she has done her master's in entrepreneurship from Baskin University. Along with that, she has worked as a VC investor, and she has transitioned transitioned to be an entrepreneur. Now, previously, she has trained a lot young entrepreneurs and women entrepreneurs across Pakistan, Nepal, Iraq, and Bangladesh. So there's a lot of wisdom that you can pick her brain on, and you can definitely ask if you're planning to start your own thing. And a lot of times, when I worked with Meena for a very short period of time, I realized कि अगर आपका नहीं भी है ना objective, I mean you're not intentionally and consciously thinking about to start your own thing, you work with Metric team and you work with Meena, and at the end of the day you're so motivated that this is something that I can turn into a business, or this is a skill set that I can monetize. So thank you so much, Meena, for agreeing to join us today. Thank you so much, Aruj, for having me and for this really nice introduction. Also, full marks on the Metric pitch. You still remember everything. Well done. I think you pitched it really well. Thank you. I have one request. Yeah. I do want harder questions. I want deeper questions. I want harder questions. Let's go deeper today. Okay. So in case if you feel like there's something that we haven't tapped into, you can definitely bring that topic up. I will. But we would like to know from the beginning, how did your journey start? How you got into VC investment, and then you got to be an entrepreneur, and just give us a run through of your journey. And for my understanding, because before I started working with you, I had to literally Google what is VC investment. So you can also, in terms of जो technical terms है, उसको थोड़ा सा you can definitely ठीक है. comment that. अच्छा, सो मेरा नाम मीना तारिक है. मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान की स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स करती रही हूँ, और आई वाज वेरी लकी कि मुझे आई गॉट सीट्स एट आई थिंक अराउंड द टेबल. आई वाज एबल टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपीरियंस थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स. व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड आउट, एक्चुअली मैंने 10 साल से पहले से अपने बिजनेस जर्नी स्टार्ट की थी. मैं जब 6 साल की थी तो मैंने चीज़ें बना के बेचनी शुरू कर दी थी. एक पॉइंट पे मैं अपनी अम्मी की ही चीज़ें उन्हीं को वापस बेचती थी, उनकी चीज़ें लेके मोहल्ले वालों को बेचती थी. फिर मेरे कज़न्स जब समर्स में हमारे घर आते थे तो मैं उनका एक ग्रुप बना के और उनको एज अ वर्कर फोर्स अपने नेबर्स को बेचती थी. आंटियों को कहती थी हम 6 लोग हैं, आपकी गाड़ी धो देंगे, आप 100 रुपये दे देना. हम 5 लोग हैं, हम आपकी लहसुन कूट देंगे, आप हमें 200 रुपये दे देना. हम कबाब बना देंगे, उस ज़माने में लोग कबाब घर में बनाते होते थे, तो हम आके कबाब बना देंगे, आप हमें 300 रुपये दे देना. तो ये बहुत अर्ली ऑन ना इस किस्म की चीज़ें करनी शुरू की थी. तो मेरा बिज़नेस से बहुत डीपर ताल्लुक़ कह लें बहुत अर्ली ऑन हो गया था, बिकॉज देयर वर 2 थिंग्स. आई रियलाइज कि जब आप कोई चीज़ करते हो और जो पैसे कमाते हो ना, उस पर किसी और की डिसीजन मेकिंग नहीं होती. जो वो 200 रुपये मैंने बिज़नेस के थ्रू कमाए हैं ना, वो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं रोक सकते. मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं रोक सकते उन 200 रुपये से आइसक्रीम खाने से. तो आई रियलाइज्ड कि
financial independence actually gives you a lot of decision making power, and for people who might not be able to get jobs, business actually gives you a lot of financial independence. That's true. So that was one of the core reasons for me to kind of get into this overall business ecosystem. तब मुझे ecosystem का word भी नहीं पता था, entrepreneurship का word भी नहीं पता था. जब मैंने undergrad करना था तो मेरे parents चाह रहे थे मैं डॉक्टर बनूं और मैं चाह रही थी कि मैं बिजनेस को ही और सीखूं. तो आई एंडेड अप डूइंग माय बीबीए फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली पाकिस्तान में वो बीबीए में मैनेजमेंट सिखाते हैं, वो बिजनेस बनाना नहीं सिखाते. तब मैंने फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया. आई एम अ फुलब्राइट स्कॉलर. आई वेंट टू बैप्सन कॉलेज. वहाँ से जाके मैंने MBA किया. बैप्सन कॉलेज का पूरा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे है. तो आई एंडेड अप गोइंग टू अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप. जब मैं वापस आई तो आई स्टार्टेड ऑफ एट I2I वेयर आई वाज रनिंग एन एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर्स जो हैं, जब आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होता है तो आप वो इंक्यूबेटर के पास ले जा सकते हो, और इंक्यूबेटर आपको उस आइडिया में से बिज़नेस बनाना सिखाता है. जब वो बिज़नेस थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप एक्सेलरेटर के पास जाते हो, और एक्सेलरेटर आपको बिज़नेस ग्रोथ और स्केल सिखाता है. तो मैं वो एक्सेलरेटर पाकिस्तान में रन करी थी फॉर 3.5-4 years. आई वॉज़ वेरी लकी. मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स के साथ काम किया, और मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के अंदर बिजनेसेस कैसे बिल्ड होते हैं उसको क्लोजली देखा. When I left that, I started working in a couple of different places. I was working with the USAID on a project जिनके थ्रू मैंने 700 business owners को train किया across Pakistan, and I also started working with the World Bank जिनके साथ मैंने 5 साल काम किया on a project called V5 Women Entrepreneurs Financing Initiative, access to finance, access to markets for small business owners Pakistan में, and then I also designed that program in Iraq. So my whole journey has been around entrepreneurship, has been around different types of businesses. वो आप necessity based business से शुरू कर सकते हैं, और वो आप high tech स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं. इसके दरमियान में किसी पॉइंट पे मैंने सोचा कि मज़ीद मार खाने की ज़रूरत है मुझे, तो क्यों ना मैं अपना स्टार्टअप भी शुरू कर लूँ. कम हो रहा है अभी थोड़ा सा. दिस वाज आफ्टर आई बिकेम अ VC. एक्चुअली आई बिकेम अ VC इन 2018. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. ये फंड्स क्रिएट करते हैं और उन फंड्स के थ्रू ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को. तो 2018 में आई बिकेम अ पार्टनर इन अ VC फंड domiciled out of the UAE, and we did 8 investments in Pakistan over the next 2 years. I don't know if you guys have heard of Rumi. I'm an investor in Rumi. I'm an investor in Co-Natural and Baby Planet, a few others. Had a lot of learning. Again, बहुत एक different ecosystem है VC ecosystem. वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ learn किया. और फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत young हूँ अभी VC partner बनने के लिए. बाकी सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ ज़िंदगी में करके वापस आए थे VC बनने के लिए, और मैंने अभी तक शायद उतना on ground experience नहीं लिया. तो उमर, my co-founder उमर, वो भी उस वक्त पार्टनर था एक VC फंड में. वी बोथ क्विट आवर जॉब्स एंड देन वी स्टार्टेड मेट्रिक, एंड देन पिछले 2 साल से मार ही खा रहे हैं. Thank you so much for sharing this. So, while you were saying that you gained all this experience and insights while you were working at I2I and Caravan, अभी हम देखते हैं कि एक mentality या फिर एक जो ideas बहुत ज़्यादा circulate कर रहे हैं कि you have to instantly, you need to start with a startup and you need to get into business directly. I would like to emphasize how your learning and experience while working at all these firms really helped and empowered you to start your own thing, or do you think it's a better idea to just get into start with your own startup? So if we have to evaluate the 2 choices, what would be your advice on it? So मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई थिंक आपको और चीज़ें करनी चाहिए पहले बिफोर यू डू अ स्टार्टअप. फ्रैंकली इवन फॉर माई सेल्फ मुझे लगता है कि शायद मैं भी अभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर एवरीथिंग आई हैड टू फेस व्हेन आई बिकेम द CEO ऑफ अ कंपनी. और मेरी फर्स्ट जॉब तो यूफोन थी जो कि PTCL ओन करता था, और वो इतनी ट्रेडिशनल वर्क प्लेस थी, इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर था, इतनी टिपिकल वर्क इन्वायरमेंट थी, इतना रगड़ा था कि मैंने 13 महीने वहाँ रो के गुजारे. जिसके बाद मेरी अम्मी ने हाथ जोड़े और कहा खुदा का वास्ता छोड़ दो, हम तंग आ गए हैं कहानियाँ सुन के कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वहाँ पे.
पे, राइट? बट वो वाला रगड़ा जो था, आई थिंक मैं आई एक्चुअली डोंट थिंक कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में आपको रहना चाहिए, बट आई थिंक आपकी ये लर्निंग भी होनी चाहिए कि आपने कैसी जगह नहीं बनानी, क्या काम आपने नहीं करना, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसी कंपनी आपने नहीं बनना, कैसा लीडर आपने नहीं बनना, कैसा CEO आपने नहीं बनना, आई थिंक ये लर्निंग भी आपकी होनी ज़रूरी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी वो शुरू में नॉट इन अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बट इवन इन अ गुड वर्क एनवायरनमेंट, जो जनरल प्रोफेशनलिज्म की लर्निंग होती है या जो ओवरऑल एक्सपोजर होता है ना, वो आपको हेल्प करता है इन द लॉन्ग रन जब आप खुद कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं। मुझे लगता है मतलब आज से 4-5 साल पहले आई वॉज बीइंग हेड हंटेड फॉर अ GM पोजिशन इन अ बिग मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, और मैं उस वक्त मुझे लग रहा था मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम है, जो मैं सोचूं यार ये मेरे बारे में क्यों, वाई आर दे इवन कंसिडरिंग मी फॉर दिस, राइट? पर अब एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज आई डोंट इवन थिंक आई वाज रेडी। शुक्र है कि मैंने वो पोजीशन नहीं ली, आई डिड नॉट एंड अप डूइंग दैट बिकॉज आई वुड हैव फेल्ड मिजरेबली देयर, बिकॉज इट इज़ सो हार्ड टू बिल्ड अ कंपनी, इट इज़ सो हार्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल इन योर टीम्स, मेक श्योर दे आर ग्रोइंग, इट इज़ हार्ड इफ यू ट्राई टू डू इट द राइट वे। सो आई थिंक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, आप डी रिस्क कर रहे होते हो, और स्टार्टअप की जो गेम है ना वो सारी रिस्क की है एंड रिस्क मैनेजमेंट की है। जितना आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सको उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। That's so true. That's so true. I completely agree with you. Just before that, I wanted to ask everyone, can you hear Meena clearly? Not very clear. Yeah, I think मेरा जो माइक है ना वो Can you अप try डाउन this होता one? है, but then they won't be able to hear you. It's okay. I think. Is this better? Yeah, this is better. Okay. Is my voice better? It's okay. Okay. So you talked about कि कि आपको experience मिला, what kind of space you don't want to build and what kind of environment you don't want to nurture. How are you applying all these learnings at Metric, and how are you defining the culture at Metric? What are the things that we can learn from you? Okay, so the culture that we're building at Metric, right? So Metric जो है ना वो, what is Metric? Metric is my company, our company, and Rooj ने भी थोड़ा सा introduce कराया था, but I'll reintroduce it. Metric is a financial management app जो कि small businesses use कर सकते हैं on day 0 of their business or year 5 of their business. We launched the app itself about 1.5 years ago, and we have been used in 190 countries organically, and we have 130,000 businesses right now on the platform. So now, alhamdulillah, Metric is a multi-million-dollar company. We're growing really fast. We have about 35-40 people right now in our team here in Pakistan. Our office is in Town, and we really enjoy what we're doing and what we're building. So हम एक values, we call ourselves a values first organization at Metric. Values first का मतलब ये है कि हमने अपनी values define की हुई है. We have 5 different values, और हम हर चीज़ उन्हीं की basis पे करते हैं. हमारी कंपनी में हर decision making उन values की basis पे होती है. कौन hire होगा, कौन fire होगा, कौन promote होगा, किसके साथ हम काम करेंगे, किसके साथ हम, even हमारे users या customers अगर कोई बहुत prominent होते हैं, उनके साथ भी हम कोई किसी का product खरीदते हैं, किसी और कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़। हमारी 5 वैल्यूज़ हैं। बेटर एवरी डे जो कि एक लर्निंग वैल्यू है कि हम कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो। हमारी कंपनी में हर पर्सन एवरी सिंगल डे कोई नई चीज़ कर रहा हो और पिछले दिन से बेहतर हो। डूइंग एपिक वर्क विच इज़ कि हम दुनिया में ओके काम करने नहीं आए। हमारा ये कोर बिलीफ है कि हम दुनिया में फिनोमिनल चीज़ें करने आए हैं, और अगर कोई काम हम ठीक से नहीं कर सकते तो हमें वो करना ही नहीं चाहिए, या हम कोई चीज़ बददिली से नहीं करेंगे, हम कोई चीज़ इस तरह से नहीं करेंगे कि अच्छा यार बस पूरा करो, जान छुड़ाओ, जैसी है वैसे कर दो। हम माठा काम करने दुनिया में नहीं आए, तो हम कुछ ज़बरदस्त करने आए हैं और हम वही करेंगे। फिर हमारी एक वैल्यू है टुडे यू टुमारो मी, विच इज़ एन एम्पैथी वैल्यू, कि आज मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ तो कल यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगी। हमारा ये बिलीफ है कि जब आप यूनिवर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती है। तो हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली ये काम कोशिश करते हैं कि हम टुडे यू टुमारो मी को फॉलो करें। देन हमारी वैल्यू है नो गेट कीपर्स, विच इज़ इंक्लूसिविटी वैल्यू।
हम कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करते हैं कि हम और लोगों को कुछ सिखा सकें, बता सकें, इंक्लूड कर सकें। वो डाइवर्सिटी वैल्यू इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो लोग हायर हों वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हायर हों। हमारी कंपनी हमने किसी को हायर करते हुए कभी उनकी डिग्री नहीं देखी, हम पूछते भी नहीं है कि आपकी डिग्री है कि नहीं है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस या जो आप काम करना चाहते हैं वो रेलिवेंट है, अगर आपका पैशन रेलिवेंट है उस चीज़ से, हम डिग्रीज़ के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेते। मुझे नहीं पता मेरी कंपनी में जो लोग हैं उनकी डिग्रियां हैं कि नहीं है, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है, और मुझे परवाह भी नहीं है। किसी को अंग्रेज़ी बोलनी आती है, नहीं बोलनी आती, अगर उसके काम से रेलिवेंट नहीं है अंग्रेज़ी बोलना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंपनी में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से, बहुत दूर दूर की जगहों से लोग हैं, वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, एंड वी लाइक दैट, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक दूसरे से लर्न तब कर सकते हैं। अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। आई थिंक वी वांट टू ऐड अ लॉट मोर डाइवर्सिटी टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, एंड इंशाल्लाह वी विल। व्हाट इज़ द वैल्यू दैट आई एम फॉरगेटिंग? आई ऑलवेज लीव कैंडिड कॉन्वर्सेशन। हमेशा जब मैं 5 बता रही होती हूँ ना, आखिरी मुझे भूल जाती है, चाहे वो मैं किसी भी उससे बताना शुरू करूँ। कैंडिड कॉन्वर्सेशन इज़ आवर 5th वैल्यू, विच इज़ अ वैल्यू अराउंड डायरेक्टनेस एंड डायरेक्ट फीडबैक। सो हम मेट्रिक इज़ कम्प्लीटली अ पॉलिटिक्स फ्री इन्वायरमेंट, और पॉलिटिक्स हमारे ख्याल में तब होती है जब लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्ट नहीं होते, और एज अ कल्चर डायरेक्टनेस हमारे कल्चर के अंदर नहीं है, हमने नहीं सीखा। हम या तो लोगों से लड़ते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। या हमारी पूरी लड़ाई होती है फुल ब्लोन रोना धोना, गाली गलोच, और या फिर रुस जाओ एक दूसरे से और सालों साल बात भी ना करो और कभी दोबारा मुंह ना देखो उसका, राइट? वो जो सेंटर वाला पाथ है ना, कि जिसमें हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, तमीज़ से एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, वो हमारे कल्चर ने हमें नहीं सिखाया। तो हम एज अ कंपनी उसको लर्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ देयर इज़ आइदर डायरेक्ट फीडबैक, देयर हैज़ टू बी डायरेक्ट फीडबैक। अगर आपको कोई चीज़ किसी की बुरी लगी, चाहे वो आपसे सीनियर है, जूनियर है, कोई भी है, आप डायरेक्टली उसको जाके बताते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो डायरेक्ट अप्रिसिएशन। वी हैव अ मैसिव कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन। वी हैव बिल्ट टूल्स इंटरनली एंड प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। सो वन इज़ एक्चुअली चीयर्स फॉर पीयर्स। हमारी कंपनी में हर क्वार्टर every single person who works at Metric can give a cheers for peers to another person. Cheers for peers is a cash reward that the company will give that person on your behalf. So you decide you want to give him a cheers for peers this quarter. You will send out a company-wide email saying, this is the reason why I think this person has done a phenomenal job and they should get this cash reward. Every single person in Metric can send a cash reward to anybody they want within the company, and they do. So this is just one tool, and इसकी वजह से होता ये है कि लोगों के काम को हर किसी के काम को विजिबिलिटी मिलती है, हर किसी को वो स्पेस मिलती है कि वो अच्छा काम कर भी सके और वो अप्रिशिएट हो भी। So we are constantly building systems and processes and tools ताकि हमारी जो ये values हैं इनको हम uphold कर सकें। Thank you so much, Mia. I think so हमारा कल्चर जो है ना, आई थिंक ऑनेस्टली फॉर माई सेल्फ एंड फॉर उमर, जब हमने ये कंपनी बिल्ड करनी शुरू की थी, हमें आप लोगों को शायद ये बात यकीन भी ना आए या जो भी है कि हमें इससे फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी होगी क्या होगी। हमें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जो लोग हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो हर दिन इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वहाँ काम करना। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह बिल्ड ना करो ना जहाँ पे आप खुद अपना काम इंजॉय कर सको, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम में से किसी को भी किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे वो होम में हो, आपकी ज़िंदगी बड़ी छोटी है या बहुत लंबी है, और आइदर वे गलत जगह पे रहने से आप सिर्फ अपने आप को मिजेबल बना रहे होते हो। सो एक रीसेंट चीज़ जो हमने की अपनी कंपनी में, हमने वर्क टाइमिंग्स प्रीटी मच कम्प्लीटली हटा दिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे लोग नहीं हायर किए जो जिनमें खुद अकाउंटेबिलिटी है, तो ये आपकी गलती है। हमने इतनी अकाउंटेबिलिटी और इतनी एम्पावरमेंट दोनों की हुई है अपनी कंपनी के अंदर कि सबको पता है उनका क्या काम है। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो लाइक एनी ट्रेडिशनल कंपनी जी 9 to 5 होता था, अब कोई भी नहीं होता। बिकॉज हम ऐसी कंपनी बनाना नहीं चाहते जो कि लोगों के टाइमिंग्स गिन रही हो या देख रही हो कि कितनी देर के लिए बाथरूम गए या कितनी देर सिगरेट ब्रेक की और सुबह कितने बजे आए और शाम कितने बजे आए। अगर कोई पर्सन अच्छा काम करता है तो उसका काम वैसे भी सबको नज़र आता है, और जो अच्छा काम नहीं करता उसको आप 9 से 5 ज़बरदस्ती बिठा भी लेंगे तो आपकी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़ायदा होगा, ना उस पर्सन की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होगा। सो अगेन फॉर अस आई थिंक, you know, it sounds like maybe it's an altruistic thing, maybe it's a very selfish thing. I don't want to work in a company like that. I want to work in a company that is open, it does have a positive work culture, is a happy place to work. क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के
बहुत ज़्यादा मेजर वेकिंग आवर्स एक्चुअली अपनी वर्क प्लेस पे गुजारते हैं. सो मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन सारे लोगों की शक्लें देखती हूँ, राइट. मैं अपने बहन भाइयों से ज़्यादा इनसे मिलती हूँ और इनसे बात करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. तो अगर मैं अपने जो मेरे साथ लोग काम करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने को ट्रूली इन्जॉय नहीं करूँगी और वो मेरे साथ इन्जॉय नहीं करे, तो हम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए. सो फॉर अस आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन टर्म्स ऑफ कल्चर एट मेट्रिक. And I testify to everything Meena said because I worked with them for like 6 months for a project. And it was such a fun experience. I worked at a startup in the initial days of my career and I was so burnt out. I was like, startups के साथ तो बस काम ही नहीं करना. मतलब this was like my object. मतलब this was the decision I made for myself. But when I started working with Meena and their team, I realized, okay, it's not the startup ka problem, it's the team ka problem. You need to be very conscious about the kind of people you're working with because, as you said, we're spending most of the time with our at office and with the teams. Yeah. Also, startups in general are extremely high stress, right? Startups are probably the biggest risk you are taking in your life. They are extremely high risk and they're extremely high stress. आपका डेली का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा होता है. जिंदा रहेंगे नहीं जिंदा रहेंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, अगले महीने मर जाएंगे, ये काम कर लिया तो ये चीज़ फट जाएगी, ये काम कर लिया तो आगे लगी हुई होती है हर तरफ. रोज़ ऑफिस जाते हैं ना, किसी डिफरेंट डायरेक्शन से चपेट आती है. सीधी जो बात है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर, आप सोच रहे होते हो कि अच्छा यार मैं इधर ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, फिर इस डायरेक्शन से चपेट आएगी पर मैं इसको इस तरह डील कर लूँगी. नहीं, आप जाते हो पता लगता है कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोची भी नहीं थी वो ख़राब हो गई है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, एक नई फायर है, राइट. लिटरली एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ इज़ एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाउंडर. ये स्ट्रेस आपकी टीम के एक एक मेंबर को फील हो रहा होता है. सो अगर आप उनको इस स्ट्रेस के साथ साथ एक हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो स्ट्रेस खाली जो है ना वो वही बर्न आउट, मतलब दैट्स व्हाई पीपल बर्न आउट सो क्विकली इन स्टार्टअप्स, राइट. इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट चेंजिंग, रोज़ नई चीज़ें हो रही होती हैं. आज हम डिसाइड करते हैं हम ये डायरेक्शन लेंगे, दुनिया में कोई चीज़ बदल जाती है, हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, फ्रॉम स्क्रैच नया बिल्ड करना शुरू करो. तो अगेन फिर आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो जिनके साथ लोगों की पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी हो रही है और वो एंजॉय भी कर रहे हैं उसको. Yeah, that's so true. So, and the best thing about startups now, because now I'm working with a startup and I am having a lot of fun, which is based, and that comes back to कि आप किस तरह की टीम है, किस तरह का प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं या किस तरह की उनकी कंपनी वैल्यूज़ हैं. It all comes down to the values and everything. And there's so much learning every day, and I'm sure that you're running Metric, and even before that there's a lot of learnings that you have to incorporate every day. But I want to ask you, what are the things that you have to unlearn, especially as a woman entrepreneur in Pakistan? अच्छा, जनरली भी आई थिंक अनलर्निंग बहुत ज़्यादा है. सो हमने जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सपीरियंस की व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर टीम, तो हम मिलेनियल्स में आते हैं, राइट. हमारे साथ के जितने लोग हैं इस वक्त जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे, जो हमारी एज ग्रुप के हैं ना, उनको काम करते हुए 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए हैं. हमने ये रियलाइज़ किया कि जब हम 10-12-15 साल वाले लोगों को हायर कर रहे थे ना, तो उनके साथ बैगेज इतना ज़्यादा आ रहा था ऑफ पास्ट वर्क प्लेसेस दैट दे हैव बीन एट कि उनके लिए अनलर्न करना बहुत ज़रूरी हो रहा था टू बी इन दिस न्यू कल्चर, न्यू वर्क एनवायरनमेंट जो कि इतना डिफरेंट है, इतना ड्रामेटिकली डिफरेंट है. तो हमें शुरू में कल्चर पे भी हर कोई, बल्कि शायद अभी भी मेरे और उमर दोनों के घर वालों के ख्याल में पता नहीं हम क्या करें और कैसे अभी तक कंपनी चल रही है, उनको यकीन नहीं आता, राइट. क्योंकि लोगों का ख्याल है कि अनलेस पाकिस्तान में आप लोगों के सर पे डंडे के साथ खड़े हो और उनके पैसे काटो लेट आने पे और छुट्टियों पे उनको डांटो और ये करो और वो करो, तो ऐसे चल ही नहीं सकता. तो जब हमारी अनलिमिटेड लीव पॉलिसी है, जिसका मतलब है आप जब मर्जी छुट्टी करें, जितनी मर्जी छुट्टी करें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपने अपने बॉस को बताया हुआ है और आपका काम उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, आपने प्लान आउट किया है. आप अगर मिड ईयर 3 हफ्ते के लिए K2 चढ़ने जा रहे हैं तो लिटरली हैपेंड लास्ट ईयर, तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, राइट. पर लोगों को ऐसे लगता है कि ये चीज़ मुश्किल होगी. सो अनलर्निंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ें, ये वाली माइक्रो मैनेजमेंट हमने नहीं करनी और हम इस तरीके से ऑपरेट नहीं करते. हम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जॉय, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एम्पैथी ऑपरेट करते हैं. एज अ वुमन, people pleasing is one big one. I think brown women in general and brown
kids overall are brought up to be people pleasers. कोई अच्छा लगे ना लगे, आपने बहुत उनको खुश रखने की कोशिश करनी है. As women खास तौर पे आपने अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बहू, अच्छी वाइफ, आपके ऊपर ठप्पा होना चाहिए. हर वक्त आपका बैज होना चाहिए चमकता हुआ कि मैं जो हूँ ना बहुत अच्छा हूँ. और वो जब अगर आप CEO की कुर्सी पे बैठ जाएं तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि अच्छा ये जो लोग हैं ये मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या मैं अब अच्छी CEO भी हूँ. और मेरी तो ये एक टॉडलर भी है. मिराना वाज 1.5 year old I think when we started metric. She's now माशाल्लाह 4. She's grown up at metric. तो साथ साथ ये भी था कि अच्छा अब मैं CEO तो बन गई हूँ बट मैं अच्छी माँ वाला बैज ना उतर जाए, कोई उतार ना ले. और वो लोग उतारने की कोशिश भी करते हैं. मेरे अपने घर वाले मुझे कहते थे तुम हर वक्त मेट्रिक करती हो, बेचारी मिराना उसकी क्या ज़िंदगी है, उसके तो दोनों माँ बाप बस मेट्रिक करते रहते हैं, तुम लोग उस तो वो मुसलसल लोग आपके ऊपर से ना वो बैज उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड यू आर ट्राइंग टू फाइट फॉर योर बैज कि मेरे से ये वाला भी ना जाए बैज और वो वाला भी ना जाए बैज. आई थिंक देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू लर्न टू लेट दोज बैजेस गो एंड लेट other people stop having the power to decide whether you are a good anything or not, and almost stop caring about whether they think you are a good anything or not. And this honestly, as a CEO, all I want is that the people who are working in my company are happy, are satisfied, and are growing and are able to do the best work they possibly can. That's my job. I need to hire good people and I need to make sure I grow them together. But not every single decision of mine is going to get popularity. And that's okay also. Not every single decision of mine is going to endear me to my little dogs. And that's also okay. Not every single decision of mine is going to endear me to my parents. And that's also okay. As a brown woman, specifically, you have to learn this if you want to further in your career. For that. And it's someone that called sharing God's leader. Like people want to start this up expand from it, but I go up to you guys up night and shooting and really fix it. Just a quality of it, I think just but what was it hard again to catch you guys she's still Go out. for now so it goes where it yeah. Can I just add one more thing that I didn't want specifically talk about? I had a few conversations here around Pinami. मैं लोगों को बहुत खुश करती हूँ on building their personal brands. और personal brands से लोगों को लगता है कि आप sales ही होने की कोशिश कर रहे हो, but isn't it building your brand is about creating value and sharing what you have learned in life with other people. और इसमें लोगों का सबसे बड़ा जो fear होता है ना वो imposter syndrome होता है. क्योंकि conversation में जिसमें किसी ने कहा but you know what people judge me. या मैं एम्बैरेस भी नहीं कर सकता हूँ या मुझे लगता है लोग मुझे जज करेंगे. मैंने मेरे टीम में मेरे राजेश दोस्त के उनको कहा कि एक दफ़ा मैंने ना कोई बात नहीं थी भैया ने कहा बच्चे जानता कौन. तो एक चीज़ जो हमने दिमाग में रखी है ना, अगर हम ट्रू ग्रोथ मेंटालिटी में जाना चाहते हैं वो ये ना फियर और कि कोई हमें जज करेगा या कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा नहीं. इसी तरह लिटरली आप ऐसे इतना सोचते हैं आपको ऐसे लगता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के ना सेंट्रल कैरेक्टर हमें लगता है हम यूनिवर्स का सेंटर है, बाकी सारे लोग हमारे खेल रहे हैं. आप में से जो कोई गेमर्स होंगे उनको पता होगा वो गेम में आप सिर्फ कैरेक्टर के और बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जिंदा में होगी, वो मर जाए गाड़ी नहीं चल कोई होता. दिस अ वर्ड क्या होगी NPC. हाँ तो हम जिंदगी ऐसे गुजार होते हैं कि हम कुछ सेंट्रल कैरेक्टर के और बहुत सारे एनिमीज के होते हैं पर हमें लग के रहा है सारे लोग हमें देख रहे और हमें जज करो और इससे आपको कोई नहीं जानता. तो आपने हमेशा ये सोचना चीज़ें करते हुए क्या इससे बुरा मेरा होगा लोग सिर्फ पहले बार कहीं ना मुझे देखेंगे. मैं जब घर से भी हुई कि लोग मेरे को मार्केट देखेंगे तो घर से ही होते ना उससे पहले चल जाना चाहते. पूरे पाकिस्तान में लोग चढ़ने मारेंगे क्या नीना सारे निजाम हुए तो चले जाना ब्राज़ील चले जाऊँगी आप ब्राज़ील में कोई जा क्या फर्क पड़ेगा. हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और लोगों की अपनी बहुत ज़्यादा नसीहत है. हमारा इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो हमें इस तरह पीछे खींचता है कि वो हमें एक्चुअली आपका इम्पोस्टर सिंड्रोम आपकी ईगो से लेंगे. आपको लग रहा होता है कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो और इतने सेंट्रल हो कि हर किसी को परवाह है इसने क्या बोला है उसने क्या उसने ये टिकटॉक है कि नहीं है ये सारी टिकटॉक पे आपको बहुत ज़्यादा प्रयूज करी देगा. So there has to be a point where you have to stop caring about that and actually realize कि बट वही खेलना है. I think this time lot बाकी सारे लोग भी खेल ही आए हैं, सिर्फ आप ही आए खेलने और वो अपनी अपनी गेमें खेल रहे हैं. उनके अपने मसले चल रहे हैं उनको अपनी जगह से चुपेड़े पड़ेंगे.
आप अपने वाले पे फोकस करें और आप अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और आपने जिधर आप पहुंचना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। बाकी सब साइड questions. If anybody has any questions, I would love to answer them. Started this what's your first point of actually the working started with the device and keyword. Like a husband that was start में जाता है और ये है न्यूज़ कवर्स वर्ड बेसिकली अब के दो सारे ये जो है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस डिजिटल बिजनेस सारी पे स्टार्टअप बेच दैट ये you need to build something in, right? It has to be new, otherwise you are not at the right. You are with the truck. So इसकी दुनिया के लाइफ वैसे तो पाना मेरे की सर ये है कि बिजनेस तो अधिक खाते रहेगा और लेट्स से कोई भी बता बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अगर कोई सारा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कुछ उसको किस तरीके से बनाना और किस तरीके से उसके अंदर कुछ वही की तलाश लाइट का करती तो जनरली जो एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में जो डिफरेंट सेटअप है ये पूछे थे कि ऑन स्टार्टअप एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप कल्चर तो एंटरप्रेन्योर और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है उसकी दरमियान जो लाइन है वो कैसे डिफाइन हुई है सो एंटरप्रेन्योर्स हम या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स मेरे ख्याल में सब होते हैं एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वैल्यू एंड डूइंग इट थ्रू बिजनेस दे आर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेसेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो यूजुअली इतना हैविली टेक इनेबल्ड नहीं होता या टेक फर्स्ट नहीं होता वो स्केल यूजिंग टेक नहीं कर रहा होता मैंने इसकी एग्जाम्पल एक पॉडकास्ट बड़े उससे पहले दी थी पर अगर मैं बिरयानी का ठेला लगाऊँ तो वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है मैं बिरयानी की दुकान लगाऊँ मैं उस ठेले से जब मैं पैसे कमा लूँगी मैं दुकान पर डाउन पेमेंट करूँगी मैं दुकान दूँगी प्यारा दूँगी उसकी रेंटिंग का फिर मैं दुकान में शिफ्ट करूँगी मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बड़ी होगी टू सेट अप दैट शॉप फिर जब मैंने उस शॉप को नेक्स्ट शॉप तक मेरे 1000 कस्टमर्स तक पहुँच गई या 2000 तक पहुँचने के लिए मुझे डिफरेंट जगह पर शॉप खोलनी पड़ेगी अगर मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्केल जो है वो बड़ी होगी वहाँ पर मैं किचन सेटअप करूँगी मैं ग्रो करूँगी फिर मैं इस्लामाबाद से लाहौर में दुकान भेजूँगी अपनी बिरयानी की दैट्स हाउ आई स्केल एनी ट्रेडिशनल बिजनेस राइट अगर मैं एक इनेबल्ड बिजनेस क्रिएट करूँ बिरयानी का तो मैं शायद एक बिरयानी डिस्कवरी प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगी जिस पे जो मार्केट प्लेस होगी जिस पे दुनिया भर के बिरयानी वेंडर्स अपने आप को डाल सकते हैं और लोग बिरयानी वेंडर्स को रेट कर रहे होंगे और मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग खरीद रहे होंगे और बेच रहे होंगे मैंने किसी सिटी टू सिटी नहीं जाना सेटिंग अप शॉप मेरा जो कॉस्ट था वो एक्चुअली टेंट बिल्डिंग और वेंडर ऑनबोर्डिंग कॉस्ट था और मैं शायद पहले 3 महीने में 50,000 बिरयानी वेंडर ऑनबोर्ड करके एकदम से 3 लाख यूजर्स पे चली जाऊँ वर्सेज इन डिजिटल बिजनेस मैं पहले 1000 कस्टमर्स तक पहुँची थी 6 महीने में या साल में दोनों बिरयानी बिजनेसेस हैं पर एक 10 enabled या 10 इनवर्स है जिसमें स्केल करना इज quicker and sometimes most of the time cheaper क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर और दूसरा जो है उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीमेंटल है सो नेक्स्ट बिजनेस ग्रो इसी करके आप जाते हो चलना शुरू होता है लोग बिरयानी कोई बिरयानी बेच रहा है कोई बिरयानी खा रहे मैं इस्लामाबाद में पैसे कमा रही हूँ कोई टिकट राइट सो भी पैसे खा रहे यहाँ पे मैं खुद शॉप खोल रही हूँ फ्रेंचाइज कर रही हूँ ग्रोथ जो है वो ऐसे कटिंग बचा Do you understand the difference now? So that's the core difference between a traditional business and a startup. Let's just say. I have met people in the Bible that's okay. Because The other guys, the whole story, but that Georgia. we can really understand each other. That's it. We have a very interesting person with your company sounds very touching. For us, look at it. Your company sounds like a utopia. So how many people have you fired? Why? How? So we have fired In the next couple months, I do. I want to say anything that's not something. three maybe over 3 years, but also with Firefast. So अगर आप कंपनी ज्वाइन करेंगे और हमने हायरिंग में मिस्टेक की है और आपने आने के साथ ये जो शो कर दिया कि आपका कल्चर हमारी लक्ष्य के साथ फिट नहीं है तो वी विल आस्क यू टू लीव वेरी क्विकली बिकॉज वैल्यूज़ जो होती है ना ये बड़ी इंट्रिंसिक किस्म की चीज़ होती है वैल्यूज़ बहुत लर्न नहीं होती है इसलिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ कुछ लोग होते हैं वो अगर लाइन होना तो वो हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं और उनका ये बिलीफ है कि दुनिया ऐसे ही चलनी चाहिए कुछ लोग होते हैं कि अगर लाइन होना तो वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से लाइन काट लें प्रिटेंड करके जगह गया गलती से आगे आ जाए
लेडीज को आगे आ जाए, कुछ भी करके किसी तरीके से वो लाइन गार्ड के आगे पहुंच जाए। और उनका ये बिलीफ है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, दे आर डूइंग समथिंग राइट, दे आर सेविंग टाइम एंड दिस इज व्हाट दे नीड टू डू। ये दो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं, राइट। अब कोई भी वैल्यूज होती है ना, वो गलत गलत सही नहीं होती। वैल्यूज ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वैल्यूज पर्सनल होती हैं। और अगर मेरी वैल्यू है कि मैं लाइन रख रही हूँ और मेरा जो छोटा भाई है उसकी वैल्यू है कि हमेशा लाइन काटनी चाहिए, तो मैं उसकी मर्जी। मगर हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइन में खड़े होने वाला है और लाइन काटने वाला है वो इकट्ठे काम करते हैं ना ज़्यादा, तो सिर्फ लाइन की बात रह जाती है। फिर हर चीज़ में लड़ाई होती है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड व्यूज़ डिफरेंट हैं। सो मेरी कंपनी हमारी कंपनी जो है उससे लोगों को लेने किया है, क्योंकि जो किसी कोई और प्राइमरी एक्चुअली वर्ल्ड की बेसिस पे बहुत ज़्यादा लेट गो नहीं हुए लोग, जो जिन लोगों को मैं बता भी नहीं, वो इस वजह से नहीं लेट गो हुए क्योंकि वो बहुत अच्छे मार्केटियर्स नहीं थे या कोडर्स नहीं थे या HR पीपल नहीं थे या उनको अपना एक्सपर्टीज नहीं थी अपने काम में, वो इस वजह से लेट गो हुए या उनको इस वजह से हमने कहा कि आप फिट नहीं है, क्योंकि वो हमारे कल्चर और हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं थे। और वो उन्होंने क्लियरली शोकेस किया गया, उन्होंने खुद भी फील किया, बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाते हैं क्योंकि वो खुद फील करते हैं कि वो अलाइन नहीं है, उनको एक सर्टेन तरीके से काम करने की आदत होती है, अब या एक तरीके से काम करवाने की आदत होती है। इवन मैनेजर्स, व्हेन यू हायर मैनेजर्स एंड यू से अनलिमिटेड वेकेशन है, या किसी को आने जाने पे आपने इस बात पे रोकना नहीं है, या कोई आपने ऐसे रिमार्क्स नहीं पास करने, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई सेक्सिस्ट बात नहीं होनी चाहिए, कोई एजेस्ट बात नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ कोई जोक्स आप नहीं कर सकते थे, समझिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं, बिल्कुल वी हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, राइट। बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है ये बातें ओके हैं, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस उनका कल्चर हमारे कल्चर से मैच नहीं करता। तो असल में आपको हायर फास्ट और फायर फास्ट करना चाहिए, नहीं सॉरी, हायर स्लो एंड फायर फास्ट करना चाहिए। हायरिंग पे आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी वैल्यू अलाइनमेंट में, शादी भी बाय द वे ऐसे करनी चाहिए, जो लोगों की नहीं हुई, मतलब पाकिस्तान में शादियों का भी यही है, हम शादियाँ वैल्यूज़ के अलावा हर चीज़ की बेसिस पे करते हैं, शक्ल सूरत खानदान, घर किधर है अपना है कि नहीं है, गाड़ी कौन सी है, जॉब किधर है, पढ़ा गया है, सारा कुछ देख लेते हैं। ये नहीं देखते कि अगर मैं लाइन में खड़े होने वाली हूँ तो अगला लाइन काटने वाला है कि लाइन में खड़े होने वाला है, और फिर वो दो लोग जब इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, पता चलता है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वर्ल्ड व्यू, आपका पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, और किसी की वैल्यूज चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हेन यू आर हायरिंग आल्सो और व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर लाइफ पार्टनर, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस जो कि आपकी वैल्यूज को पहले चेक करें, वैल्यूज को मैच करें, और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे क्या है। So just take one last question, and then This is getting fun. मेरा नाम जहीरुद्दीन फैज़। आई एम वेरी ग्लैड कि आपकी वैल्यूज सिखा दी, लेकिन मुझे ये बताएं कि प्राइमरीली वैल्यूज सिखाएगा कौन? आप अपनी वैल्यूज को लिखा नहीं, पहले वैल्यूज कहाँ से आए? क्या यूनिवर्सिटी सिखाएंगी, क्या स्कूल सिखा रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल सिखा रहे हैं? तो वैल्यूज आई की बात है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो मच बेटर। इस पे बिल्कुल, हम सारे लोग at whatever stage we're at have to make sure that we are living our values and trying to find like-minded people, right? I can't go back and get people to unlearn their values जो उन्होंने बचपन में सीखी हैं। और अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इसकी। I worked with someone in the past who was an excellent human being, other than that he had some anger issues. और उसके जो एंगर इश्यूज थे वो खुद कहता था कि द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, मेरे घर में मैं बेटा हूँ और मेरी बात मानी जाती है, और मुझे कभी किसी ने, मेरे घर वालों ने भी कभी नहीं कहा कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तो जब मैं अपनी टीम से कोई चीज़ करता हूँ और वो मेरी बात नहीं मानते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। अब ये उसकी ज़िंदगी भर का तरीका था जिंदगी का, जो कि उसको अनलर्न करना पड़ रहा था, बिकॉज हम ऐसी वर्क रिक्वायरमेंट नहीं अलाउ करते जिसमें कोई किसी को जलील करे, किसी को कोई डांटे, बदतमीजी करे, जीरो टॉलरेंस ऑन दैट। सो एंगर अगर कोई, मतलब उसका तो कोई स्पेस ही नहीं है फॉर एंगर इन आवर वर्क एनवायरनमेंट, राइट। सो पीपल हैव टू अनलर्न थिंग्स, एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात इंट्रिंसिकली ठीक है कि किसी को सिखाने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे जो लोग बैठे ना, ये सारे एडल्ट्स हैं, इनको किसी पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेने की ज़रूरत है। नहीं सिखाई ना किसी ने, नहीं सिखाया किसी ने अच्छे वैल्यूज़, तो फिर पूरी ज़िंदगी बुरी वैल्यूज़ के साथ जिएंगे। अगर हमें समझ आ रही है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो डिफरेंटली होनी चाहिए,
तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट पे लेके उसको अनलर्न करें और नई चीज़ों को लर्न करें। अगर मुझे लगता है कि मुझे एंगर इश्यूज है तो मुझे थेरेपी जाना चाहिए, है ना। दुनिया भर में थेरेपिस्ट हैं, एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, मेडिटेशन कोर्सेज हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे हेल्प करेंगी एट दिस पॉइंट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी है और मैंने ऐसे कल्चर्स और ऐसे स्पेसेस क्रिएट कर दिए जिसमें और लोग वो वाले वैल्यूज सीख सकें। मेरे कहने का मतलब दैट इज गुड और बैड न्यूज, व्हाटएवर योर वैल्यूज आर, यू जस्ट टेक इट विद दैट। ठीक, Also, what you think that you like to say this? That's not Nick Force, but Kevin does it. Somebody get up with waiting right. What you eat, you like to see other. Or it's fair to skate it up many shot. I started. You got to get started to the. What is the biggest motivation for you? And there is always this thing out there. So, there's always a excitement. The sex factor is there like a state back and how you that way. Help. मैं तो कह रही हूँ रोज पेड़े पड़ती हैं, आप मुझे सीरियसली ले रहे हैं। ये जो मेरे लोग जिस साथ मेरे लोग मेरे साथ काम करते हैं, आप उनसे पूछे सेटबैक्स तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट लाइक इट इज ओ बिग वंस, बिग वंस, मैसिव वंस, तो मुझे बंद हो जाएगी ये वाले सेटबैक्स 100%। सो यही बात है, the startups are extremely high stress environments and those kind of setbacks actually become. So the first time somebody who is a critical team member leaves, massive setback, massive setback. आपका कहने टेड और टेक चला गया, क्या करोगे? कैसे वो तो कोई नहीं बनाना था बैठ के आप, मैं तो खुद नहीं बना सकती, right? So you do have setbacks like that and they're really major. I think point से आगे what we learned was you have to divorce yourself from the actual outcome and you just have to focus on what is in your purview. What are the steps that I can do to mitigate risk? मैं रिस्क कैसे कम कर सकती हूँ? मेरे हाथ में आज क्या चीज़ है जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और ये चीज़ हो गई है, आप इसके अराउंड सॉल्यूशंस हैं। इसके ये मतलब नहीं मैं रोती नहीं हर बार, मैं बहुत इजीली लेती हूँ। तो मतलब शायद वर्क प्लेस में नहीं रोती पर घर जाके अच्छी तरह उसको अपने सिस्टम में से निकालती हूँ और कहती हूँ यार मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ यार किया। मैं तो VC थी, तो VCs जो होते हैं ना वो सबको पैसे बांट रहे होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है, लोग उनको बड़ी खुशी से हर जगह बुलाते हैं जब वो कहीं एंकर होते हैं कि लोग जब, क्योंकि हर किसी को लगता है ये पैसे देने वाले लोग हैं, राइट। तो जो VC की ज़िंदगी थी ना वो बहुत स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी थी। मेरे डिसीजन सिर्फ ये थे कि इनको पैसे दूंगी, इनको नहीं दूंगी, इनको दूंगी, इनको नहीं दूंगी, बड़ा मजा आता था बस लगे। उससे मैं उस साइड ऑफ द टेबल पे आ गई कि जहाँ पैसे रेज भी मैंने खुद कर दिए, मैंने जाकर कन्विंस करना है वो मेरे में कैसे करेंगी। एंड स्पेशली इन दीज 2 years, last year was one of the toughest years for startups in recent history. Economic recession, specifically if you're a Pakistani startup, nobody wants to invest in Pakistani startups right now. फंडिंग ड्राई अप हो गई है ग्लोबली। इकोनॉमिक रिसेशन में हमेशा हाई रिस्क फंडिंग सबसे पहले ड्राई अप होती है। मतलब वो सारा कुछ जो होना था वो लास्ट ईयर में हुआ और हो सकता है इस साल और ज़्यादा बढ़ती है। सो आपने अपने आप को ना सो हाउ डू आई रीड विद इट? आई एक्चुअली लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल विंस। आज अगर मेट्रिक बंद हो जाए तो मेट्रिक ने मुझे पिछले 2 सालों में क्या दिया, पर्सनली मुझे क्या लिया, मेरी लर्निंग क्या हुई, मेरे ब्रांड को क्या मिला, मैंने खुद क्या चीज़ें इंजॉय की। फ्रेंकली वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आज मेट्रिक बंद भी हो जाएगा तो मैं खसारे में नहीं, मैं प्रॉफिट में। सो आप ना मुझे ऐसे लग रहे हैं मेरा दिस इज हाउ आई पर्सनली डील विद इट, क्योंकि अगेन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। बाकी हो सकता है अगले महीने बंद हो जाए, आप लोग भी सारे कहेंगे इधर आकर कहीं बातें करनी बंद होगी, कंपनी हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलता। लिटरली स्टार्टअप वर्ल्ड में कुछ नहीं पता चलता था, बट आपकी जो इवैल्यूएशन है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ what is the profit I have earned to date, what are all the things we have been able to build. I know for a fact that if Metric dies today, every single person who has worked at Metric for the last 2 years will go to better jobs. There is no way that their careers will be. Metric has made sure that they will go forward in their careers and they will move very fast because जो चीज़ें उनकी लर्निंग कर जो उनकी ग्रोथ हुई है वो एक्सपोनेंशियल होती है। सो यहाँ से जो पेरेंट्स नए लोग निकलेंगे जो कि हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, जो कि इस तरह से जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उन वैल्यूज को आगे लेके जाएंगे। देयर गोइंग टू बी लाइक सीड्स, राइट? फिर वो अपनी कंपनी को नई जगह पे जाएंगे, वो अपने बिजनेस सेटअप करेंगे एंड दैट इम्पैक्ट विल नेवर डाई इवन इफ द कंपनी डाइज। सो फॉर मी that's how I look at these setbacks, existential threats, and that's how I try to make myself
feel better about all of the threats that exist in the startup ecosystem for any company. You have Yeah, it's very that, and I think if you reach it, yeah, to get them out. I mean, it was really nice hearing you talk about work, work much gently or a personal relationship around the around the start. But I don't know, get your extremely more generative opportunities to the past year. Abhi going to be special right here और आपको probably शायद लगा कि यहाँ पे the government की opportunity. So what do you like constantly is the project needs के लिए should be अनियत अच्छा है जब document to do yourself like these days ये काम करने की opportunity है like this. So, can we create opportunities for ourselves? We're going to have to create a lot of these opportunities for ourselves, which is the unfortunate reality, but we will have to, right? And we gotta sit back, unfortunately, and wait for compensation. yeah, the copy may want Yeah. So unfortunately, बहुत सारी तो fields that we नहीं है the opportunities और शायद again हम economic recession में हैं, right? And this economic recession is actually going to deepen before it starts getting better. So we have to think in terms of the gig economy. We have to think in terms of doing multiple things at the same time. हमारी जो जनरेशन है ना हम सारे लोग जो है हमारी नौकरियों में कोई पेंशन नहीं है हमें ना पेंशन मिलेगी ना कोई रिटायरमेंट प्लान होंगे ना कोई प्लॉट मिलेगा जो प्लॉट फिक्स खरीद लिया वही मिलेगा उसके अलावा कोई कुछ देगा नहीं राइट हमारी नौकरियाँ इस तरह की नहीं है कि जिनमें रिटायरमेंट के बाद कोई पे आउट होंगे So we have to build the kind of retirement we want and we have to build the kind of life we want leading up to that retirement. And that means not depending on others to create systems and processes. That means doing multiple things at the same time. That means having a single-minded focus on the growth. Because other than that, unfortunately, there are no, for us, for our generation, there are no safety nets. You can't get some clever. Try that. August. I needed a supply of so since you're come a long way, I recognition of my dream. But I just started to be bounty, but sometimes like you believe in yourself. Well, since that is family like business, we were at that sense. Like, do you think anywhere is that we need to have Sorry, what does that mean? You believe in yourself but you don't believe in the business? You don't think the business model is good enough? the fight economy style, the structure of the business, everything is it's down, even else is down. But if you believe in yourself that you can take it through it's a phrase which really believe in yourself. So if you think that this works out, you don't have any spaces if you're believing in yourself. Can you push out all the other family members? Is that a possibility or don't? General question. So you have to be very rational about realities, right? Don't let yourself be fooled by anything and anyone. Be very rational about what you bring to the table, what others bring to the table, what limitations do you bring to the table, what limitations do others bring to the table, and what will happen in the future. Usually, family businesses or economic structures, but I don't say they usually don't work out, but they only work out if there is extreme honesty, candid conversation, extreme peerism, which means कि कोई आपके मामू है तो इसका ये मतलब नहीं उनकी बात की ज़्यादा वेटेज है आप और वो सेम लेवल पे हैं जो भी तक इन relatives के साथ आना है but whoever it is, right? So there has to be extreme peerism and absolute respect. This battery isn't just for relatives. This is for any co-founder. अगर आप किसी partner या co-founder के साथ business कर रहे हैं, तो उसकी एक दो basics हैं, right? एक तो वही values वाली बात है जो मैं कह रही हूँ, जिसके साथ कुछ भी करें, value alignment होनी चाहिए. तो अगर आपकी और कोई ज़रूरी नहीं है family में value alignment हो, मेरी अपने siblings के साथ values differ करती हैं, तो बहुत सारे siblings के साथ मैं काम कर सकती हूँ, किसी के साथ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी values differ करती हैं, right? So आपका co-founder या आपका partner हमेशा ऐसा person होना चाहिए जिसकी values आपके साथ align हो और जिसको आप ट्रस्ट करें नॉट ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ ये धोखा नहीं देगा बट यू आर एबल टू ट्रस्ट देयर इंटेलिजेंस एंड दे आर एबल टू ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस एंड यू आर एबल टू डील विद ईच अदर एज इंटेलिजेंट एडल्ट
free human beings without anything that is holding you back or holding them. So unless that is the situation you are able to create, maybe you should spend your energy somewhere else. It says, sure, that's this. Insight this to you. Let's some quick questions. So, being a PC, what are the key parameters you actually to support a best tech in a startup? Yeah. Being a startup, what are the key parameters that we should use or watching the basic? Okay, so, and most PCs will tell you the same thing. What matters most is founder market fit. यानी कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी में अभी तक ऐसा क्या किया है जो कि मुझे ये यकीन दिलाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप परफेक्ट पर्सन हैं. आपकी अपनी मोटिवेशन लेवल क्या है, आपकी इंस्पिरेशंस क्या है, आपका पैशन किस लेवल के ऊपर है इस वक्त, आपकी नॉलेज क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, ये स्पेसिफिक सेक्टर है. तो फाउंडर मार्केट फिट एंड देन सेकेंडली वुड बी द साइज ऑफ द मार्केट. तो बीसी जो है उनको आउटसाइड रिटर्न्स चाहिए होते हैं. तो हमें ये नहीं चाहिए कि 1000 लोगों की मार्केट है, 2000, 10,000, 50,000. हमें मिलियंस ट्रिलियंस का मार्केट साइज चाहिए, ओवरऑल मार्केट साइज चाहिए. So your problem has to be big enough that it solves this for millions and trillions of people, yeah, millions and trillions of businesses, and your personal connection to this problem, yeah, this sector is so strong. Yeah, I want to put my money on it. So again, VCs या कोई भी इन्वेस्टर्स जो है ना वो रिस्क पर्सपेक्टिव ही जज कर रहे हैं. मैंने पैसे देने हैं, मैंने आप में से किसी को भी देने हैं. मैं ये देखूंगी कि इसमें इस मार्केट का साइज इज बिग इनफ कि अगर ये थोड़ा सा भी ले ले मार्केट को तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेगा इस बिजनेस के लिए या बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकेगा. और दूसरा रिस्क क्या क्या हैं जो आप लोअर कर रहे हैं, आप मिटिगेट कर रहे हैं. तो दोज आर द थिंग्स दैट आई लुक फॉर एज अ स्टार्टअप हु इज thinking about going to VCs, again, I think value alignment. So, because the VC relationship is a minimum of 10-year long relationship. And these are people who will be with you at your best, and they will be with you at your absolute worst. And if they're not people that you can trust, yeah, believe in, yeah, know that they will trust you fully, and they will treat you well, तो आप उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए. किसी बदतमीज वीसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, किसी एरोगेंट वीसी से पैसे नहीं लेने चाहिए. कोई ऐसा वीसी जिस आपका सेक्टर ना समझ आ रहा हो या आपका माइंडसेट ना समझ आ रहा हो या आपको लगता हो कि वैल्यूज मिसअलाइंड हैं, आपको पैसे नहीं लेने चाहिए. आपको लगता होगा शॉर्ट टर्म में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लें, बट असल में ऐसे लोगों से पैसे लेके आप फंस जाते हैं और आपके अगले 10, 15, 20 साल बहुत मिजरेबल गुजरते हैं. और मैं ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स को जानती हूँ जो एक्चुअली बंद हो गई क्योंकि फाउंडर और वीसी जो थे उनकी मिसअलाइनमेंट. Thanks so much. It was, I hope, answers a lot of your questions. And if you want to know more, if you want to ask, yes, Lena also offers coaching sessions. I think if you're not technical, have to, I mean, you're not in work for 30. You can follow Lena on Instagram and LinkedIn, getting more activism. Also, we have at least 3 people from our company here. So if anybody wants to find out what the real on-ground situation is like, beyond मैं क्या कह रही हूँ, तो अभी 3-4 लोग यहाँ फिर रहे हैं, इनको लगता मेरे से दूर कॉर्नर करिए और उसका भी देखिए कि मेरा इनके ख्याल में क्या चीज़ चल रही है and what is not working out and what needs to change. And yes, so if you want to network with Benedict team, you can also reach out to Harsha, Sarin, and Danish is also here. Akshish is also here. So yeah, they're really fun people to talk to, and they're also really experts in what we do. So we'll have free time and connect with them. Reach out to them. You can follow Nina on Instagram and LinkedIn and their team on all these platforms. Thank you so much for taking up. Thank you for having me and thank you for the lovely questions, everybody. Yeah.